मैं रुखसार हसन जी मोहम्मद वकास मोहम्मद अशरफ आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो को टाइटल है हाउ इंडिया रिमूव चाइना इन दी बाइक मार्केट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर किस तरह इंडियन बाइक्स ज़्यादा सेल हो रही हैं बजाय इसके चाइना का। देखते हैं पहले वीडियो। ये आई थिंक अफ्रीका को लड़का ही है, यूट्यूबर, ये वही बता रहा है। I am from Goma in DR Congo, and the earliest brand of bike which I can remember was called TVS. Today it's 2023. One of the brand which is overtaking the whole African continent for bikes is Bajaj, and these two are Indian companies. So they are not the only one in the market. There's so many other Chinese companies trying to do the same. How did these Indian brands succeed to overtake the whole African market, and especially to a brand like Bajaj? So let me give you a bit of history. This started way long before I was even born. In time when Africa is just trying to get industrialized, they need means of transport to commute from places to others. And apparently, because of the difficulty of roads, bikes became one of the best ways which they could use to move from one city to another. And the demand of bikes was increasing, and that's when the markets from outside had to come in Africa. But the first ones to come were the Japanese, and this was because of the quality which they needed, because the roads weren't that good, and they needed bikes which could sustain such roads. And unfortunately, the Japanese bikes were too costly comparatively to the African population, and that's when the Chinese got the idea of stepping in. And unfortunately, it didn't work well with the Chinese companies because they had less quality and they were affordable, which also couldn't work because they couldn't just use their money to buy a bike which they could use in a year or two and then replace it again. And that's when the Indians came out with a much better method, which was supplying a Japanese kind quality with a Chinese kind price, which means they just brought high quality for lower price in Africa. And that works well for the African population because even up until now, most don't have really good quality roads. So bikes work as an easiest way of commuting from one city to another, from one place to another. And today is 2023. From what I saw, the Bajaj and TVS companies are among the top two in most countries when it comes to the bikes which are being used in those countries. And for a company like Bajaj, they are not only the ones who are leaders when it comes to bikes, but they also supply another method of transport which became also somehow common in so many African countries, is the auto. I saw them in Burundi, they're in so many other countries also in Africa. They are also literally from India. The question of how did these guys manage to catch Africa is not only from the quality of the products which they were giving to the people, despite the people not being rich, but also the availability of more species which have to be exchanged in case of repairing, and also their representative in so many African countries. So what they did is that they don't take bikes which are fully done in India, they take pieces to so many other representatives in Africa which have to be assembled and then sold in those countries, which I think is a way which works far better by them trying to understand the exact needs of the people and then manufacturing bikes which work exactly according to the African people and according to their roads. Because those types of bikes which you find in Africa, as for example Boxer, it's one of the most popular. You can't find it any other place aside from African countries, which I think the literal meaning of that is that they really understood how the African roads are and how they can supply something of quality at a cheaper price in Africa, and that's how they won the market. तो जी वीडियो होगी ख़त्म। वीडियो इसमें कोई शक नहीं जो चाइना की है ना, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ब्रांड्स आए थे चाइना के, जिसमें धूम था, जिसमें यूनाइटेड था, जिसमें पता नहीं क्या क्या कंपनीज आ गई थी, पता ही नहीं है, समझ नहीं है कि तो कोई नहीं चली। 6 मंथ से ज़्यादा नहीं चलती थी वो गाड़ी। जो भी चाइना का माल था, जो भी चाइना की बाइक थी ना, पाकिस्तान के अंदर भाई जब आपको इतनी सस्ती देंगे, एक जो आप होंडा का लगा लें वो मिलता था 80-90 हज़ार का, और ये 30-40 हज़ार की मिलती है, तो देखें कीमत में भी फ़र्क है, तो उसकी जो है क्वालिटी में लाजमी बात है फ़र्क होगा। होंडा के बराबर तो नहीं होगा, अगर होंडा के बराबर होगा तो लाजमी बात है प्राइस भी उसी हिसाब से होगी। तो जाहिर सी बात है होंडा पता क्यों महंगी पड़ती थी, ड्यूरेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। चाइना की चीज़ जो भी होती है पायदार नहीं होती है, हल्की होती है, प्राइस भी कम होती है, तो उस हिसाब से ये मार्केट में लॉन्च प्राइस इसलिए कम है क्योंकि वो उस पर जो ड्यूटी है ना, टैक्स जो है वो कम लगता है, क्योंकि वो आ जाती है रोड्स के रास्ते पाकिस्तान के अंदर। और जो होंडा है वो जापानीज ब्रांड है, वो जापान से कितना सफ़र तय करके आती है, तय करके फिर हमें मिलती है, तो उस पर हमें टैक्स पे करने पड़ते हैं, इसलिए महंगी पड़ती है। लेकिन असल में इतना डिफरेंस नहीं है प्राइस का, सिर्फ टैक्स लगने की वजह से इतना डिफरेंस हो जाता है।
जी मैं तो इंडियन ब्रांड्स की बात करें, एक वीडियो हम देख रहे थे, कोई व्लॉगर था इंडियन का, तो हमारे भी व्लॉगर हैं, तो हमारे जो उतने ज़्यादातर जो अक्सरियत में जो चलती हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बाइक्स हैं वो हुंडा 70 है, ये चाइना की कोई है, कोई प्राइडर जो है वो कमो वो भी बेश होंडा का ही है, हुंडा के, लेकिन कमो बेश ही चलती है, कम चलता है होंडा 70 और 125। लेकिन इंडिया में मैंने देखा, मैंने कई व्लॉग्स देखे, हर बार जब व्लॉग्स बनते हैं तो बाइक्स वगैरह गुजरती नज़र आ जाती हैं। मैंने मैक्सिमम जो व्लॉग्स में देखा है इंडिया के अंदर 70 हुंडा टाइप की गाड़ी ही कोई नहीं है, हकीकत बात है। वो ज़्यादातर उनके बाइक जो है ना बड़े शानदार है। यार गाड़ी बनाई है लग्जरी टाइप गाड़ी उनकी, बहुत अच्छी गाड़ी मैंने उसकी देखी, पता नहीं वो कोई नई कंपनी, पहले तो वो बनाते थे ना ये टाटा, वो इस तरह की जो उनकी 2-3 कंपनी। पाकिस्तान के साथ रुखसार पे ट्रेड हमारी शुरू होती ना खुलती, तो मैंने एक बाइक इंडिया से मंगवानी और मुझे बुलेट क्या वो मुझे बड़ी पसंद है, बजाज इंडियन मूवीज में होती हैं। और ना सिर्फ इंडिया के अंदर, ये उनके जो ब्रांड्स है अफ्रीका गया, और ये अफ्रीका का बंदा बता रहा है, रहमतुल्लाह, मैंने तो नहीं बताया। यार मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे खुद वो पसंद है, इंडियन मूवीज में होती है, मेरी ख्वाहिश है वो बुलेट है, उसे बुलेट बोलते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। वो तो सब कुछ पसंद है क्योंकि वो मुंडो फुंडों का सवारी है, लेकिन जो इनका बजाज है ना, बजाज टीवीएस सीएल के वाकई में ब्रांड बड़े अच्छे हैं। टाटा ने भी अभी मेरे ख्याल में गाड़ी लॉन्च की है, शायद उसकी बाइक है कि नहीं है, उनकी गाड़ी तो आ चुकी है, मतलब जो है ड्राइवरलेस गाड़ी भी है, पेट्रोल के बगैर जो है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर ई कार टाटा की, वो भी मेरे ख्याल में आ चुकी है। और ये इंडिया तरक्की कर रहा है, अपनी चीज़ें खुद बना रहा है अपनी कंट्री के अंदर और बढ़ के लोगों को दे रहा है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। हम जो है ना लेने वाले हैं, देने वाले कोई चीज। पाकिस्तान के लोग अक्सर कहते हैं पाकिस्तान जो है ना बड़ी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान बड़ी ये चीजें नहीं, ये पाकिस्तान की प्रोडक्शन कोई है तरक्की किस तरह हो, किस तरह तरक्की नहीं होती इस तरह भाई, ये जब तक मेहनत करें। जी असलम भाई, बात सोचने वाली है कि ये हमारे जो वजीर आजम गुजरे हैं, अभी फौत हुए हैं, यानी कि गुजरे हैं, उतरे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमने अपने मुल्क को जो है ना बहुत मुश्किल हालात से निकाल के यहाँ सही कर दिया। तो मुझे सोचने वाली बात है। हाँ, इंडिया का तो हम वीडियोस देखते हैं, सुनते रहते हैं कि आप ये इस वीडियोस में बता रहे हैं कि वो टीवीएस के बजाज है, वो अफ्रीका की मार्केटों में बहुत ज़्यादा। असलम भाई आप क्या बता रहे जी, जो टीवीएस है और बजाज है, ये देख लें कि इन्होंने चाइना को बीट करने के लिए कौन कौन से मुल्कों में भी ये अपनी जो मार्केट है वो होल्ड कर रहे हैं, और वहाँ के ये जो अफ्रीका की मार्केट है वहाँ पे भी उन्होंने ये लॉन्च की हुई है और काफ़ी मकबूल है वहाँ पे ये इस बात से आप अंदाजा लगा लें। रुखसार भी एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर हमारी जिस तरह चाइना के साथ बनती नहीं इसी तरह इंडिया के साथ बने तो मैं कहता हूँ इंडियन बाइक ज्यादा हो चाइना से भी ज्यादा हकीकत, और पसंद भी लोग करते हैं और पैदावार भी है। यार हमारे इधर तो सबसे बड़ी बात जो है ना, जो इंडिया के जो मोटरसाइकिल है ना, बाइक है, वो लुक उनकी बड़ी शानदार है, खूबसूरत है। अच्छा ना बाइक है, नया मॉडल आया, आपको पता कल को आया, वो इतना खास पट्टी चेंज कर देते हैं। यार बाकी सारी बातें पाकिस्तान में इधर जो भी जितने भी अच्छे अच्छे मोटरसाइकिल आ जाए ना, आपको पता हमारे गांव में क्या कंडीशन होती है, वो छोड़े, वो ठीक है। भाई मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि रहमतुल्लाह जो कह रहा है मुझे इंडिया का बुलेट बड़ा पसंद है, मुझे भी पसंद, सोचने वाली और यार भेज दो, एक बुलेट ही भेज दो इधर इसके लिए, वही इसको बड़ा पसंद आ गया। पैसे मांगो, नहीं पैसे से लूंगा, पैसे भेजे ना, नहीं मैं मंगवाऊंगा, ट्रेड शुरू नहीं लीगल तरीके से। रहमतुल्लाह के चाहने वाला को इसको गिफ्ट ही कर देगा, वो का है करने वाला गिफ्ट, कोई यहाँ नहीं खड़ी करेगा, रहमतुल्लाह को बुलेट गिफ्ट करे, नहीं यार मैं नहीं करेगा, मेरी बात 100% कहता हूँ नहीं करेगा। मजे की बात यह है कि रहमतुल्लाह खुद इंडिया में जाके अपना बुलेट खरीदे, मजे की बात नहीं, ये भी इंडिया का दोस्त को ना कोई इसको गिफ्ट जरूर करेगा, मुझे लगता है। क्या आप क्या कहते हैं? मेरी बात सुनो, जो देखने वाले भाई हैं वो कमेंट यार, आपने ये चीज नहीं है भाई, हकीकत में मांग रहे, ऐसी कोई बात नहीं भाई। चले जी, ये आप करेंगे कि नहीं करेंगे? बात सुनो, चार आपके सामने चार बैठे हैं, ये नहीं अब बाइक की बात नहीं कर रहे, कौन सा आपको अच्छा लगता है और मेरिट वाला आपने कमेंट में बताया। नहीं वो एक पर्सनल हो गया, आप किसको बुलेट गिफ्ट करना चाहेंगे ये कहें कि रहमतुल्लाह को पसंद है, आप हम चारों में से किसको बुलेट गिफ्ट करना चाहेंगे। चलें ये एक समझ लें कि किस्म की पहली बन गई, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए डॉक्टर साहब, तब तक दीजिए इजाज़त।